ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਵਾਈ। ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ? ਅਸੀਂ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਜੁੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੁੜਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੁੜਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਸਜਾ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 3-4 ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਨੋਟ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਵਾਲੀ ਪੀਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯੋਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਲਾਇਨ ਤੋਂ 21 ਆਇਤ ਤੱਕ चला गया सी। हालेलुया। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू महान ते साबित परमेश्वर है। खुदाबंद इस वचन ਨੂੰ जिस बच्ची ने पढ़िया उन्होंने आशीष ते बरकत दे, जिन्होंने सुनिया मेरे पिता परमेश्वर और निकोदेमुस वर्गे ना बन। खुदाबंद ओ तेरे जहे बन जिस तरह तू समझा रहे हैं। खुदाबंद तेरे जहे बन मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि निकोदेमुस जहे नहीं। और मेरे पे कृपा कर प्रभु, इस वचन को प्रभु व्याख्या करने में मेरी मदद कर। यहोवा राफा तू जगह करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फरीसियों दे विच एक मनुख निकोदेमुस नाम दा सीगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुख कौन सीगा? निकोदेमुस। बाइबल कर जाके पढ़ ले, इतने समा नहीं होता, इतने सुनने का समा का क्या रहता, सिर्फ लिखता सब। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 72 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 12-72 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 20 घंटे ही दे जो, उन्हें ही बहुत ने, बाकी सारे घंटे अपने को रखो। जे 20 घंटे में ही परमेश्वर को नहीं दे रहे तो असी ओ ईसाई हां जेडे सड्डे दी सड्डे चर्च आउंदे आ, अगो पिछो नहीं होंदे। असी ओ ईसाई हां ਜਿਹੜੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕੋदेमुस ईसाई भी मिलेगा। ये अपनी उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। हालेलुया। हालेलुया। कदों आया? रात ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ? ਚੋਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਕੋदेमुस ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। हे रब्बी, हे रब्बी, नाम की कह रहे हे रब्बी, हम जानते हैं कहता सी जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। कहता सी जानते हैं कि तू परमेश्वर दे ओर से गुरु होके आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, कहता जो तू चिन्हां नूं दिखाना है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना होता, कहता जे परमेश्वर तेरे साथ ना हुंदा, नहीं दिखा सकता। तू नहीं दिखा सकता सी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ चिन्ह, कोई भी इंसान अपने आप नहीं ठीक कर सकते, प्रभु यीशु मसीह कर। ये जो बेटा नामा जगा होया जो अज लोग पैरों से है नहीं गया, उन्होंने पुत्र मरण तो बचे
वो पैर लगने बंद हो जाया, मैं नहीं, मेरी यीशु मसीह ने जगह। हालेलुया। जद तक ये कहना मनते रहेंगे, इन्हां दी जिंदगी विच बहारां रहणगियां। जिस वेले कहना मनों हट गए, ये नरक दे खुड विच भुखे मरनगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुण ये बच्चा ठीक हो गया है, ये बच्चे का की काम है? काम करे, काम करे ते संडे नूं छुट्टी करके करना बैठे, जिन्ना दा भरा बह रहा, भैन बह रही, ब्याह करवा लिया। तो खूबी की रखी उन्होंने, पास्टर जी सानू 5000 रुपया दे दो, असीं किराया देना। कट्टिया वर्गे वो काम करके दे नहीं सकते, बाकी पास्टर का लेंदे देंदे नहीं है। कल भी तो अर्जी कहना कि साडा पास्टर ने रुपये दे के धर्म बदलता, पास्टर रुपये देंदे नहीं है, पास्टर लेंदे ने। आ मेरे चर्च सच की आवाज की गवाही है, लाइव हो रही है। मैं उन्होंने लोगों को दसना चाहना है कि मैं उन्होंने 5000 रुपया नहीं दिता, बल्कि वो जो विचार करते थे 7 साल तो उन्होंने मां और भैन के सामने उन्होंने ब्याह कर दिता कि तुहाडा इस बाबे विचार ना गिनिया जाए, विचार ना गिनिया जाए, तुसी परमेश्वर की निगाह विच सही हो। ऐसे ऐसे लोग भी गुरुद्वारे, मंदिर, चर्चा, मस्जिदां नूं ठगण वास्ते आउंदे ने। इन्हां दा कदे भला हो सकदा है? नहीं हो सकता। हालेलुया, नहीं हो सकता भला इन्हां दा। पर फिर भी एलिगेशन मसीह लोकां दे लग गया है कि तुसी धर्म बदलदे हो रुपये दे के। नहीं मेरे दोस्तों, असीं धर्म दे के रुपये नहीं बदलदे, असीं धर्म नहीं बदलते, असीं धर्म के ठेकेदार नहीं आ। ना असीं किसी को हिंदू तो मुसलमान बनाने हैं, ना मुसलमान तो सिख बनाने हैं, ना सिख तो ईसाई बनाने, ना असीं किसी को पैसा देने ते ना ही असीं किसी को पैसा लेने। हालेलुया। ओ लोग गलत ने जेड़ा अपना मतदान, अपना वोट, अपनी कलीसिया वेच देता है वोटां की खातर। वो लालची मनुख है, उन्हें कलीसिया नहीं बेची, उन्हें अपने पेट से जमे हुए पुत्र दिया बेच दिते, उन्हें अपनी धी बेच दी है, उन्हें अपनी जनानी बेच दी है, उन्हें अपना पुत्र बेच देता है। वो पास्टर कहलाउंदे लायक नहीं है, वो बेड़िया है। हालेलुया। कौन जाना है साडे धर्मां दे विच कि पैसा लालच आ गया है। ये लालच है जड़ा सानू साडे भाई तो दूर करदा पिया, भाई तो दूर करदा पिया। असीं कहने हैं कि यीशु मसीह की मूरत लाना उन्ना ही बड़ा पाप है जिन्ना की जनाह करना है। फिर असीं भी मूरतां लाई बैठे हैं। ये पैसे का लालच बंद करो। मूरतां बेचण वालिओ, कलौक बेचण वालिओ, पानी बेचण वालिओ, वोटां बेचण वाले। हालेलुया। ये निकू दे विच प्रधान सीगा जिन्नू यीशु मसीह कह रहा है, जिहड़ा रात नूं आया है। कि हुण वोटां वालिਆਂ ने भी रात नूं आया करना, प्रधानां ने रात नूं आया करना है ते कई पादरियां ने विक जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जमे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया।
ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बारी क्यों बोला सच सच? बड़ा मकसद है, बड़ा भेद इत्थे छुपिया है कि कुछ लोग कहते असीं सुनिया ही नहीं हैगा, सानू पता ही नहीं लग्या। उन्होंने उदों पता लगता जो बेटा आवाज हुंदा है, उदों कहना मरदे ने। रोज पूरा टब्बर सफाई करना होता है, वो बच्चा चंगा हो गया, काम दे क्यों नहीं आ रहे? यही वजह कि असीं परमेश्वर के घरे सफाई करनी है, प्रार्थना करनी रोज आके, परमेश्वर का काम नहीं करना। असीं मंजे ते आलस पा के रखा हुआ, कहाँ रात में दर्द, कहाँ पैसे की कमी है, कहाँ कर्जा है, कहाँ नशे अंदर ने, कहाँ मुंह जो बदबू आती है, कहाँ ये सारा कुछ हो। वो कहता सच सच ता क्या कि तुहानू सुन जावे। हालेलुया। सच सच कहता यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या क्या होना? जो नवे सिरे तो नहीं जमता, लत्ता का जंजिया हो गया, नए सिरे तो जमना बाकी रह गया। नए सिरे तो ਹੁਣ कई लोग इतने सोच रहे हैं कि नवे सिरे तो किवें जमना है। यही गल निकोदेमुस बयान कर रहे हैं कि नवे सिरे तो किवें जमना। हालेलुया। बड़ा निकोदेमुस ने उससे कहा, हालेलुया। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, कहता मनुष्य जब बड़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे अपनी मां की कुख में दोबारा जन्म ले सकता? हालेलुया। कैसे बुढ़ा तकी जवान की जेडी अज बच्ची 5 दिन की हुई है, वो भी मां के कुख च नहीं दोबारा जा सकती। पर मसीह विच है मरना एक बार ते जन्म 2 बार है। हालेलुया। जब तक तुसी दूसरी बार जन्म नहीं लेते ना तो तुसी धरती ते पूरी आशीष से बरकरार हो सकते हो, ये ना आकाश विच जा सकते। हालेलुया। ना तुसी स्वर्ग विच जा सकते हो। आज असी इथों जलंधर जाना होवे, सानू टिकट लैनी पवेगी या नहीं लैनी पवेगी? बाहरली कंट्री जाना पवे, पासपोर्ट बनवाना पवेगा या नहीं बनवाना पवेगा? वीजा लेना पवेगा या नहीं लेना पवेगा? लेना पवेगा। हालेलुया। ते स्वर्ग विच जाने वास्ते भी एक वीजा है। आओगे बढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिता, वीजा केड़ा लेना है? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। फिर प्रभु कह रहा कि मैं तेरे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से पैदा ना हुए, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते बैठे जिन्होंने काम कर चुके ने, पर वो जदों बदखुइयां कर रहे ने, वो गलती कर रहे, वो अपने हड्डा पैरों का इलाज कराने का इंतजाम करा रहे। जिन्होंने चर्च चढ़ के होर जनानियां कर लिया ने, अपने बच्चों तो अलग हो गए ने, वो की कर रहे हैं? अपनी चप्पड़ियां टुटने का इंतजार कर रहे हैं। जेड़े ये सोच रहे हैं कि असी फॉरेन कंट्री का तो कहने वीजा फट के पास की प्रार्थना करो, सर फॉरेन कंट्री का वीजा लग जाए। ते कदे किसी ने इन्नी गल कही
कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि मैं स्वर्ग का वीजा लग जाए। स्वर्ग का वीजा लाना, मैं स्वर्ग का, मैं दुबई का या इत्थों के वीजे नहीं लाता है। मैं उस स्वर्ग का वीजा लाना है जिथे भुख ते प्यास नहीं है, जिथे सोने दी सड़क ने, जिथे कोई औरत नहीं सारे ही मर्द ने। तुसीं सिर्फ औरत एक बराबर दे, तुहाडे अंदर आदमी नहीं आत्मा है। असीं उस परमेश्वर नाल तुहानूं मिलाउणा है जिहड़े परमेश्वर ने तुहाडे पापां दा नहीं अपना लहू बहाता सूली ते जड़ दे के तीसरे दिन फिर जीवित हो गया तुहाडे लिए, जिहड़ा अधिकार दे के गया तुसीं सानूं कि जाओ मेरे लोकां नूं जाके खुशखबरी का प्रचार सुनाओ, जिहड़ा सानूं दस के गया कि मैं जावांगा कि अपने प्यो के घर में तुहाडे अशियाने बनावांगा। हालेलुया। तुसीं प्यो के घर दे छाने विच धरती ते बैठे हो, तुसीं अपने बच्चों ने की बनाया, तुसीं अपने सस सहुरे दे अशियाने विच बैठे हो, तुसीं अपने बच्चों ने की बनाया, यशिया मारे रेत के मकान बना रहे, मेहनत नहीं कर रहे। हालेलुया। सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक तुसीं तौबा करके बपतिस्मा नहीं ले लेंगे, तुहाडी जिंदगी च कमियां ते कमियां शैतान तुहानूं डरांदा ही रहे। शैतान तुम्हारी बरकत नूं खा जाएगा। आगे बढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? यह शरीर है। वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर तो तुसीं अपनी मां दी कुख जो पैदा हो चुके हो, हुण असीं आत्मा विच बढ़ना है, ते जदों आत्मा च बढ़ जाना है कोई लगड़ा नहीं रहना है। घर विच किसी कई चीज की कमी घाटी नहीं रहनी है। पर इन्ना ही नहीं कि असीं तौबा करके बपतिस्मा लैके उनकी शराबां पी, या असीं जनानियां रखी, या असीं गलतियां करिए, या असीं लंगर खाते रहिए होरना जगह नहीं, ये काम नहीं। ये जिस दिन साडे कोल कोई पहली बारी आउंदा उहनूं उस दिन ही समझाउंदे आ कि तू हुण पिछां नूं मुड़ के ना वेखी। संत पौलुस कहता है कि तेनों मसीह ने आजाद कर दिता, तेनों लगड़ेपन तो आजाद कर देता है, तेनों तेरे दुखों तो आजाद कर देता है, तेनों मौत तो बचा लिया है, ते हुण तो परमेश्वर के पीछे होला, पीछे को ना मुड़ी। जे पीछे को मुड़ेगा तो कर दिया ओदे विच गिर जाएगा, उथे आ गया उथे सड़ जाएगा। संत पौलुस दा सिर्फ इन्नी गल ही कहता है, पर मैं पास्टर पाल किस्म दे जाने तो इन्नी गल कहता है कि जेड़ा एक बार भी चर्च में जाके यीशु मसीह का वचन सुन गया है, जे ओ पेशान में चढ़ गया तो नरका का भागी हो गया। काला भागी हो गया, नरका का भागी हो गया, नरक की आग में को जान का वारस हो गया। हालेलुया। आगे बढ़ो। अचंभा ना कर, चंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे तो जमना अवश्य है। आत्मा ये तो जरा आत्मा है की है, ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, अबलीस का आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा नहीं है।
ललकार ला दूंगा। उन्हें कहा कि जे तुसी मेरे आत्मा नूं नाश कर दोगे तो मैं तुहानू नाश कर दूंगा। जे तुसी मेरे आत्मा नूं नाश कर दोगे तो मैं तुहानू नाश कर दियागा। इन्हें कर हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कहता मैं तुहानू नाश कर देगा। कहता मैं तुहाडे हੱਡ जोड़ दिते ने, मैं तुहाडे हੱਡ जला दिते ने। जे तुसी हुण मेरे कहने विच ना लगे ते ये हड्डां दे नाल नाल मैं तुहाडीआं बाहां भी खिलार देवांगा, तुहाडीआं अखां भी इंनियां कर देवांगा, तुहाडी जबान भी थथड़ी कर देवांगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मैं नहीं कहता। हालेलुया। हुण साडा काम की है परमेश्वर दे विच ईमानदारी नाल चलना। ये नहीं कि घरां विच बैठे रहना। जे असीं घरां च बैठे रहे ते समझ लो असीं अपनी अंश दा नाश कर रहे हैं। असीं अपनी आउण वाले दोतरे पोतरे दा नाश कर रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो। हवा जिधर चाहती है, हालेलुया, स्टार्टिंग के बचन में हवा जिधर जाती है उधर चलती है, उधर जाती है। हालेलुया। क्योंकि यही रिक्वेस्ट पहला हुई है, यही रिक्वेस्ट हो गई कि जे असीं पूरी रोटी नहीं खाते तो असीं भुखे रह जाते। भुखे ते भुखे रहे बंदा नूं बीमारियां लग जाती। ये बीमारियां का जो पैसा ही कमाने वो कितने चला जाता, डॉक्टर को चला। हालेलुया। हवा जिधर जाती है उधर जाती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता, परंतु तू नहीं जानता कि वह कहां से आती, वो कहां से आती और किधर को जाती है, और किधर को जाती है। हालेलुया। लगता तुहानू पता वा जो आती है कि इधरों आई है ते चफेरे ही घूम गई है। इसे तरह ही तुहानू नहीं पता लगता है हवा किधरों आती है ते किधर जाती है। हालेलुया। हवा किधरों आती है ते किधर नूं जाती है। आगे बढ़ांगे। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। जिहड़ा आत्मा तो जमया वही स्वर्ग जाएगा, जिहड़ा शरीर तो जमया वो नहीं जा सकता। हालेलुया। सानू आत्मा तो जमना बहुत जरूरी है। सानू दुआ करके अपने ग्राह तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। असीं किसी का धर्म नहीं बदलते। असीं होका दिन्ने हैं कि जे अपना जीवन सवारना है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, मेरे पास लौटे। अपनी बेखुदियां नो छड़ दे। हालेलुया हालेलुया। आओ असीं क्या ही होर पढ़ांगे। सबक उपदेशक दे विच लिखिया 11:5 विच, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू हवा के चलने का मार्ग नहीं जानता, और इस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। हालेलुया। कोई तुम्हारे में जो है ऐसी मां, ऐसा कोई बाप जेड़ा ये दस सके कि मां दे पेट दे गर्भ दे विच हड्डियां किवें वधदियां ने बच्चे दियां, चाहे मां दे पेट विच भी। ऐसे ही तुसी परमेश्वर की समर्थ नूं नहीं जानते, ऐसे ही तुसी परमेश्वर दे कमां नूं नहीं जानते, ऐसे ही तुसी परमेश्वर की आशीष नूं नहीं जानते। ये परमेश्वर जवाब किनू दे रहा है? ओ निकू दे मिसरों जिहड़ा रात नूं चोरी आया सी,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब तक तुसी यूहन्ना 3:9 पढ़ोगे। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमुस ने पूछा ये किवें हो सकता है पंजाबी में। हालेलुया। ये बातें कैसे हो सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया ये बातें कैसे हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जिवें हुणे ही इत्थे कई लोग सोच रहे सी भी दोबारा जन्म किवें होवे। सोच रहे बड़े बैठ के नहीं सोच रहे थे। बोलिए हाथ खड़ा करिए जेड़े गल सोच रहे थे। हाथ खड़ा करिए जेड़े सोच रहे थे कि दोबारा जन्म किवें होएगा। सोच रहे थे। बोलिए बोलिए मुंह ना तो और कुत्ता हाल होता इधर किया ना करके जेड़े सोच रहे थे ये गल करी। हालेलुया। ये कौन सोच रहे थे जेड़े नवे बंदे से। दोबारा तो मां के पेट में जाने की लोड़ नहीं है। जो परमेश्वर ने दसिया उत्तर है। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर। हालेलुया। ये कौन सी इस्राएलियों का गुरु सी। ये उन्हें ईसाइयों का गुरु सी। हालेलुया। जेड़े कहते तुसी ईसाई बन के तुहानू इस्राएली बना ये उन्हें इस्राएलियों ने समझा रहा है। ये उन्हें ईसाइयों ने समझा रहा है। ये उन्होंने गुरु अगुवे ने समझा रहा है। ये निकोदेमुस इस्राएलियों का गुरु सीगा। कहता तू गुरु हो गए कर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। कहता तू गुरु हो के ना गल्लां नूं नहीं समझदा ते तू गुरु कादा है। क्योंकि रहते कितने जी इस्राएली लोग मूर्ति पूजा के विच। किसी ने यीशु मसीह की मूर्ति ला ली, किसी ने पुष्पवती की मूर्ति ला ली, किसी ने देवी की मूर्ति ला ली, किसी ने सोने के बच्चे बना के मूर्तियां ला ली। कोई डंगरा की पूजा कर रहे थे, कोई घाह की पूजा कर रहे थे। सब अपनी अपनी मर्जी नाल अपने अपने देवते बना के लगे जिस तरह तुसी लगे। आज तो पता लग गया शायद तुसी काम छड़ देते नहीं। बहुत धन्यवाद बड़ा पर अंदरों अपनी खुदियां नहीं छड़ियां। अंदरों अपनी आत्मा नूं तैयार नहीं किया। कहता तुसी ओदे कोलों डरदे हो जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं मारदा है। तुसी ओदे कोलों डरदे हो जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं जेल विच भेज दिंदा है। कहता तुसी ओदे कोलों नहीं डरदे जिहड़ा तुहाडे शरीर दे नाल नाल तुहाडी आत्मा नूं भी मार दिंदा। ओ प्रभु यीशु मसीह कोई होर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक असी ओदे कोलों नहीं डरदे असी स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन जी क्या है 6 दिन काम कर या पवित्र दिन मैनू दे मैं तेरी अंश च फतेह करांगा। मैं तेनू नुआ दवांगा। मैं तेरे घर कोठियां अपने मकान बना दूंगा। हालेलुया। जे असी ये दिन परमेश्वर नू नहीं दे रहे ओदे जी उठन दा दिन नहीं दे रहे ते समझ लो असी घाटिया भी जा रहे। जे असी परमेश्वर दे घरे आके काम नहीं कर रहे ते समझ लो असी घाटिया भी जा रहे। हालेलुया। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हम जो जानते हैं। हालेलुया। ये कह रहे प्रभु यीशु मसीह ट्रक की गल कर रहे थे। ट्रक इस्राएलियों के प्रधान में चढ़ पा रहे
ਇਹ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਈਸਾਈ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ नहीं है, ये शरीरक जीवन है। ये अब्राहम वाला जीवन है। हालेलुया। ये जीवन आत्मिक नहीं है कि असि अपनी शरीर की जमी हुई बेटी ना ब्याह करावांगे, फिर आत्मिक जमी हुई ना क्यों करवा रहे हैं? हालेलुया। क्यों करा रहे हैं? क्यों आत्मिक जमी हुई के नाल असी गलत निगाह रख रहे हैं? ये जीवन पवित्र नहीं, ये जीवन पवित्र नहीं है। ये दाग वाला जीवन। पढ़ांगे। हम जो जानते हैं वह कहते हैं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, उसकी गवाही देते हैं। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह खुद आके तुहानू समझावे तो तुसी ना समझो तो तुसी हरामी हो, हरामखोर से। हालेलुया। आज तुहानू यीशु मसीह खुद समझा रहा है। पढ़ेंगे। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? आज तक तुहानू की दस रहे ये धरती दी गल्लां दस रहे ते जे तुहानू स्वर्ग दी गल्लां दसन लगे तो पता ही नहीं लगना क्यों। ये कदों पता लगेगा? बेशक तुसीं अनपढ़ जे, जे तुसीं एक घंटा भी चर्च जाके प्रार्थना करो तो स्वर्ग दी गल्लां समझ आ जाएगी। स्वर्ग की भाषा बोलने लग जाओ। बेटा सत्य बोलो, करने करने में करना। एक चर्च है, मंदिर नहीं बैठे हुए। हालेलुया। हालेलुया। स्कूल से बैठे हुए। हालेलुया। आगे बढ़ो। 13 कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हालेलुया। कहना कोई स्वर्ग से नहीं चढ़ा, चाहे कोई 2000 साल तो पहला क्यों नहीं आया होया, चाहे कोई 200 साल पुराना भी क्यों नहीं आया होया, 200,000 साल पुराना भी पहला क्यों नहीं आया होया। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। हालेलुया। उस स्वर्ग दे विच सी जड़ा ओनू भी थल्ले सुट्टदा सी प्रभु ने, ते 200,000 साल पुराना भी स्वर्ग से नहीं चढ़िया, स्वर्ग तो कढ़िया जरूर गया है। हालेलुया। एक गहरे पेट ने एक घंटे 1.5 घंटे नहीं मिलते, इन्होंने आके सीखना भी ना। इको काम नहीं ना आया करो कि मेरे नोट मिल जाए, थप्पा मिल जाए तो फिर की होंगे बच्चे हराम कौरियां बढ़ जाए, भी विचार करने लग जाएंगे, तो फिर उन्होंने अंश वास्ते
ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਲ। ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਧੂਏ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਆਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਏ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने वास्ते बड़ा जिगरा चाहिए है। ये निकुदेमुस रात को आया। हालेलुया। आज पढ़ा के जैसे 6:36 पढ़ा के जीवन, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। मैं इस जगवेदी के उत्ते अपनी मर्जी नाल नहीं खड़िया। मैं चर्च विचों कढ़िया गया सीगा। मैं गोडे टेक टेक परमेश्वर दे के इस जगवेदी तक दा पहुंचे, अपनी मर्जी नाल नहीं, परमेश्वर की मर्जी नाल। परमेश्वर की मर्जी नाल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਦਤ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪੀਵੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਾਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। परमेश्वर कहता छड़ दो इन्हों को। फिर बोला क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। पहले अपनी जिंदगी दे विचों ओ चीज़ां कढ़ियां मैं जिहड़ियां माड़े पासे लग गईयां। जदों माड़े काम करदा सी ते माड़े राह चलदा सी तां की मिल गई? जेल मिल गई। कि तुसीं भी यही चाहुंदे कि तुहाडी औलाद नूं यही मिले? नहीं, मेरे प्यो दादे करते आए, मैं भी यही कुछ लगा। आज तुहाडा प्यो की कर रहा है, उसके पीछे चलो। प्यो साडा यीशु मसीह है, जेड़ा उसके पीछे चलेगा वो आनंद पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो बड़ी जल्दी जो और
चढ़ाया, उसी रीति से वच है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ी रीति दे नाल मूसा ने सब ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, बड़ा बड़ा भेज है, जिस भेज ਨੂੰ खोलਣ ਲੱਗ ਕੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ बड़ा बड़ा भेज है, इस भेज ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਲੱਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। उसी रीति से मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है। आओ 8:28 करांगे जोड़ना। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, हाँ जी, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, हाँ जी। परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हालेलुया। कहता जदों तुसी मैनू उस उच्ची सलीब ते चढ़ाओगे, मैनू ऊंचा करोगे, तब फिर जानोगे कि ये गल मैं तुहानू कही सी। हालेलुया। मत्ती दी पढ़ लगे 27:33 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? गुलगत्था का पहाड़ से, जिहदे उपर वो चढ़ाया गया सी। हालेलुया। गुलगत्था का पहाड़, जिहदे उत्ते खोपड़ी का पहाड़ जिहनूं कहा गया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 32-27-33 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 15 ਪੜ੍ਹੋ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ठीक है। ताकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या जीवन पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। की देता? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ भेंट नहीं दे सकते। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ क्यों ਦਿੱਤੀ? आशीष क्यों ਦਿੱਤੀ? पहले परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेन बहुत बढ़ावांगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि तेरी अंश आकाश से तारियां जिनी होगी। फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश से तारियां जिनी अंश का देन लगाए कि ये उन्होंने लोगों वांगू तो नहीं करेगा जेडे मेरे कहने में नहीं जाते। ओदी परख लई परमेश्वर ने, कहता जेड़ा तेरे मैं प्यारा तेरा पुत्र दिता है ओदी बलि दे। ओदी बलि मंगी परमेश्वर ने। ये लोग की कहते हैं कि असीं पैसे दे के धर्म बदलते। परमेश्वर यहोवा ने ओदी बलि मंगी है। बलि एक अब्राहम घबराया नहीं, अपने पुत्र को लगे बलि देने वास्ते उस वेदी बनाई लकड़ियां ओदी बलि देने वास्ते पूरा उतरे अपने वादे। इस मैटर से भी लेना होवे तो अलग मैटर है भी। हालेलुया। असीं परमेश्वर दे घरे की करदे आ? सिर्फ इको चीज करते हैं कि साडा बच्चा चंगा हो जाए तां असीं। हालेलुया। आगे बोलो। ताकि कोई उस पर विश्वास करे, कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। वो नष्ट ना हो। जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर से कि जे उन्हें मैनू दित्ती औलाद ते मैनू मारेगा नहीं, मारेगा नहीं। जो कोई उस पर विश्वास करे उसको नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत सारा परमेश्वर से कृपा करेगा विश्वास करना है। आगे सारा
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत ਨੂੰ दंड की आज्ञा देवे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, कि जगत ओदे द्वारा बच जाए, उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर गया है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उन्हें इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, वो दोषी है। यूहन्ना 5:10 पढ़ेंगे। वह सबत का दिन था, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, यहूदी जो चंगा हुआ था, कहने लगे आज तो सबत का दिन है, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। खाट उठाना उचित नहीं। आज भी वो लोग कईयों ਨੂੰ मैं कल बचन सुनाया, उठ ते चल फिर तो तेरे परमेश्वर कृपा करू। पर यहूदी ने अजे भी मूर्ति पूजक ने उन्होंने कहना नहीं मने ते उठ नहीं सकते। जदों ये लगना 38 साल का जो एक दलान के विच ब्याया सीगा, जिहदे तो पहला कई लोग जाते ही पानी ते जाते ही ठीक हो जाते। इन्हें परमेश्वर ने क्या मंजी चुक से तो जा तो ओ यहूदी लोग पूछते आज सबत का दिन है, तू मंजी चुकी जाना, तू काम करता पिया है, वो शनिवार का दिन गया, तू काम कर गए, वो कहते थी 6 दिन काम करो तो 7वां दिन आराम करो, 7वां दिन शनिवार गया। परमेश्वर ने क्या पहले दिन मेरे पावन जाओ तो 6 दिन आज शब्द पर खिलाफ हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया, उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उन्हें चंगा प्रभु यीशु मसीह ने किया सीगा। वो लंगड़ा सीगा, वो मंजी दे उत्ते सीगा, ते ओ की होया के पढ़ा सुन जाओ। उसे पूछा, वे कौन मनुष्य है, ये कौन मनुष्य है जिसने तुझे कहा खाट उठा और चल फिर। खाट उठा और चल। कहते केड़ा मनुष्य पढ़ा गया। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उन्हें पता ही नहीं वो कौन सीगा, केड़ा उन्हें चंगा करके चला गया। आज उन्हें पता है ਤੁਹਾਡਾ बेटा किथों चंगा होया है, फिर भी असी जाके बाहर नगर करनी पड़ा गया, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण, उस जगह से भीड़ बहुत ज्यादा थी, यीशु वहां से हट गया था, यीशु को चंगा करके चला गया थी। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। फिर वो किथे मिला? मंदिर दे विच। वो की मंदिर दे विच सेवा करने गया, यानी कि मंदिर छोड़ के चला नहीं गया, मंदिर छोड़ के चला नहीं गया। और वो कहता पूरा परिवार उत्थे लगा रहा, पूरा परिवार उत्थे सेवा करता रहा। तो उन्होंने लोगों को पता लग गया कि ये प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो ना जल्दी नहीं पढ़ा। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, हाँ जी, और दंड की आज्ञा का कारण ये है, दंड की आज्ञा का कारण ये है, ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को
ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ज्योति को दुनिया को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। तो बुरे काम करते सी उन्होंने ज्योति नहीं जगी, उन्होंने परमेश्वर के कामां नहीं वेख्या कि जी अंधकार दे विच सीगे, बुरे कामां दे विच सीगे। आज परमेश्वर की ज्योति आई जो उन्हें जगह कर दी। अगली क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है, वे ज्योति से बैर रखता है, वो परमेश्वर से बैर, यीशु से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट नहीं आता, वो चर्च में नहीं आता, चर्च जो पा जाता है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य बताता है, वह ज्योति के निकट आता है, वो परमेश्वर के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, उसके काम प्रकट हो। हालेलुया। वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये परमेश्वर के और के ये परमेश्वर के बच्चे हैं। जरा ज्योति के कोल होता वो परमेश्वर का बच्चा है। जरा चर्च आता है वो परमेश्वर का बच्चा है। जरा तौबा करके बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर का बच्चा है। जरा तौबा करके नशे खा रहा है वो शैतान का बच्चा है। जरा परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता वो शैतान का बच्चा है। वो ज्योति तो इनकार कर रहा है, वो यीशु मसीह तो इनकार कर रहा है, वो सिर्फ बुल्ला नाल जालसी कर रहा है, सिर्फ बुल्ला नाल जालसी कर रहा है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, उसके अंदर पाप है, विरोध है। कि उसके अंदर पाप है, विरोध है, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ नहीं ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ज्योति ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पता लग जाता कई लोगों को इस जगह से जो वचन परमेश्वर का हो रहा है सच्चाई नाल हो रही है। ज्योति चमक रही है, या ज्योति चमकती है तो आशीष देती है। आशीष किनू देती है? जो परमेश्वर के विच ईमानदारी नाल चलता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਨਾਲ प्यार करता है, ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸੀਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ हर कासे चीजें की थोड़ा नहीं आउन दिंदा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭु ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ज्योति ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ज्योति ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ पूरी आत्मा नहीं छड़ के परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर तुम्हारे बड़ी कृपा करे। आमीन आमीन। हुण साडे प्रभु का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी पवित्र जाकर विश्वास करने वाले विश्वासियों से प्रभु के आउन तक बनी रहे। सब लगे आमीन आमीन, सब लगे आमीन आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान से पूरी होती है जमीन ते भी होए। साडी रोज की रोटी सानू अज दे, जिस तरह असी अपने कसूरवारां नूं माफ करते हाँ, तुसीं भी साडे कसूरां नूं माफ करो। अजमैन च ना पाओ बल्कि बुराई तो बचाओ। बादशाह कुदरत दे जलाल सब तुहाडे है, तुहाडे ही रहणगे। आमीन आमीन।